Hello students, how are you all? Welcome to our channel Digitizing Education. I hope you are preparing well for your exam. So today I have came up with the paper 2 of B.Ed second year. So the paper name is Assessment for Learning. So I have came up with the MCQ series of paper 2, and in this video all the MCQ which we will see will be from unit 1. So what I'll suggest you, just read the unit 1 of your book Assessment for Learning and then try to solve the MCQ questions. Okay, and if you have not liked, shared and subscribed our channel, please subscribe it, because whenever I'll upload any video you'll be able to know, you'll get the notification and you can just access the MCQ. And please share with your friends. Okay, so let us now start with the MCQ series. Our first question is assessment which identifies the standard of attainment achievement at the end of the year is option 1 diagnostic assessment, option 2 formal assessment, option C summative assessment, option D criterion referenced assessment. So assessment which identify the standard of attainment achievement at the end of the year. See student, जब भी आप देखोगे कि असेसमेंट जो एंड ऑफ द ईयर के लिए पूछ रहे हैं ना, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो हमेशा ही समेटिव असेसमेंट होएगा. Okay, so this one is our correct answer. Now why क्यों होगा? बिकॉज समेटिव असेसमेंट वो असेसमेंट है जो हमेशा साल के एंड में होता है. आप इसको अपना फाइनल एग्जाम जैसे स्कूल में होता है आप वो कंसिडर कर सकते हो. ओके, तो जहां आप जस्ट नोट इट डाउन, जहां भी आप देखोगे ना, एंड क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ना है, बट आप जब एंड ऑफ द ईयर पढ़ोगे ना तो उससे यू कैन जज कि इसका आंसर जो है समेटिव असेसमेंट, क्योंकि समेटिव असेसमेंट हमेशा एंड ऑफ द ईयर में होता है. ओके, so now let us see our second question. The evaluation which is conducted during the process of instruction. Formative evaluation, summative evaluation, CCE, formal evaluation. So वो evaluation जो कब कंडक्ट होता है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब कि जब टीचर पढ़ा रही है उसी टाइम कंडक्ट होता है इवैल्यूएशन. ओके, सो द करेक्ट आंसर देखो, मैं अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसका आंसर समेटिव था, जो मैंने आपको बताया एंड ऑफ द ईयर होता है. ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन सा इवैल्यूएशन होता है? सो द करेक्ट आंसर इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. ओके, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन वो इवैल्यूएशन है जो टीचर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंस्ट्रक्शन करती है. फॉर एग्जाम्पल, उसने एक चैप्टर पढ़ाया, एक यूनिट पढ़ाया, एंड देन वो उसके बाद आपसे ओरली कर सकती है, आपका एक सरप्राइज यूनिट टेस्ट ले सकती है उसी चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चन. सो इट कैन बी इन एनी फॉर्म, बट कब होता है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन. सो दैट इवैल्यूएशन इज योर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. The variable which can be changed by the experimenter is intervening variable, dependent variable, independent variable, testing variable. जो वेरिएबल जो इसको एक्सपेरिमेंटर चेंज कर सकता है, so the correct answer here is your independent variable. ये है जो एक्सपेरिमेंटर चेंज कर सकता है. Let us see the next question. The process by which the previous effects and hence caused behavioral changes of the student are tested. Options are measurement, evaluation, assessment, examination. So student, इसमें जो चारों ऑप्शन दिए हैं, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन, असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन, तो आपको इन चारों का जो डिफरेंस है ना वो थोड़ा सा पता होना चाहिए. ठीक है, तो द प्रोसेस बाय विच प्रीवियस इफेक्ट एंड हेंस कॉज बिहेवियरल चेंजेस ऑफ द स्टूडेंट आर टेस्टेड. क्या टेस्ट हो रहा है इसमें स्टूडेंट का? प्रीवियस इफेक्ट एंड बिहेवियरल चेंजेस, ये टेस्ट हो रहा है. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? द करेक्ट आंसर हियर विल बी स्टूडेंट बी, दैट इज इवैल्यूएशन. ओके, let us see next question.
Assessment enables students to combine elements of their learning from a different part of the program and show their accumulated knowledge and understanding. Options are absorptive assessment, dynamic assessment, synoptic assessment, formal assessment. तो ऑप्शंस में क्या दिए, चार अलग अलग टाइप के असेसमेंट दिए हैं और क्वेश्चन में क्या बोला है, असेसमेंट एनेबल स्टूडेंट टू कंबाइन एलिमेंट। ऐसा असेसमेंट जो स्टूडेंट को क्या किस चीज के लिए एनेबल करता है, एलिमेंट्स को कंबाइन करने के लिए, जो भी उन्होंने डिफरेंट चीजें पढ़ी है थ्रू आउट देयर स्टडी, थ्रू आउट देयर लर्निंग पीरियड, ठीक है, जो भी डिफरेंट एलिमेंट पढ़े हैं, ठीक है, उन सबको कंबाइन करके क्या नॉलेज और क्या अंडरस्टैंडिंग उनको गेन होता है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी सिनॉप्टिक असेसमेंट। थ्रू सिनॉप्टिक असेसमेंट व्हाट वी असेस कि थ्रू आउट द प्रोग्राम, थ्रू आउट द लर्निंग पीरियड स्टूडेंट ने क्या क्या चीजें पढ़ी है, और जब हम उन चीजों को कंबाइन करके उससे रिलेटेड उनको असेस करते हैं, उनको चेक करते हैं, तो कितना क्या पता चलता है कि उनको कितनी नॉलेज और कितनी अंडरस्टैंडिंग है। सो इस तरह के असेसमेंट को हम कहते हैं सिनॉप्टिक असेसमेंट। जब आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ असेसमेंट पढ़ोगे चैप्टर में तो यू विल नो ऑल दिस असेसमेंट। Our next question is the diagnosis function of measurement is listed by। जो डायग्नोस्टिक फंक्शन है मेजरमेंट का वो किससे मतलब किसके थ्रू होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्रॉनबैच, ऑप्शन बी फॉर्मल असेसमेंट, ऑप्शन सी समेटिव असेसमेंट, ऑप्शन डी क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट। So here the correct answer is summative assessment। summative assessment वो होता है जो हम end of the year करते हैं और उससे हम diagnostic function भी करते हैं, हम चेक करते हैं कहाँ lacking रह गया। Okay, so this is summative assessment। In a continuous comprehensive evaluation, the phrase comprehensive evaluation indicated, CCE जिसको कहते हैं, तो उसमें जो comprehensive है वो क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। इवैल्यूएशन ऑफ होल सिलेबस, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, इवैल्यूएशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन एंड अफेक्टिव डोमेन, ओनली इवैल्यूएशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। So the correct answer is जो CCE है, that is continuous comprehensive evaluation, ये क्या evaluate करता है, सब कुछ, evaluation of cognitive domain, psychomotor domain and affective domain। Okay, so this is our correct answer। Assignment of numerals to object or events according to certain rule is called assignment of number to object। किसी भी ऑब्जेक्ट या इवेंट को जब हम नंबर देते हैं तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। सो ऑप्शंस आर असेसमेंट, इवैल्यूएशन, मेजरमेंट, एजुकेशन। तो स्टूडेंट आई जस्ट टेल यू समथिंग कि मेजरमेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेजरमेंट, ठीक है। नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू अ ट्रिक काइंड ऑफ थिंग कि जहाँ पे भी न्यूमेरल्स या नंबर रिलेटेड चीज आए ना तो दैट विल बी मेजरमेंट। ओके, मेजरमेंट में हम क्या करते हैं, नंबर असाइन करते हैं, जो चीज को हम मेजर कर सकते हैं दैट इज मेजरमेंट, राइट। सो जहां भी नंबर रिलेटेड चीज आएगी तो ऑप्शन, बट इट डजंट मीन कि आपने नंबर वर्ड पढ़ा और आप मेजरमेंट सिलेक्ट कर लोगे, नो, दिस इज नॉट द केस। बट आई एम जस्ट गिविंग यू लाइक ट्रिक कि एक टिप्स दे रही हूँ आपको कि नंबर जो मेजरमेंट है वो न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई आप उससे गेस कर सकते हो कि द ऑप्शन विल बी measurement। The objective of NCF 2005 was curriculum should be teacher centered। Is it true or false? So NCF is your National Curriculum Foundation। So जो 2005 का था उसका क्या ऑब्जेक्टिव था कि करिकुलम जो है वो टीचर सेंटर्ड होना चाहिए, ठीक है। सो ये ट्रू है या फॉल्स है। स्टूडेंट्स जो उसका ऑब्जेक्टिव था NCF 2005 का वो था कि करिकुलम चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। ओके, सो दिस इज फॉल्स, टीचर सेंटर्ड बिल्कुल भी नहीं, इट शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड, ये ऑब्जेक्टिव था।
The word examine is derived from the Latin word examine, exams, exam, examiner. तो जो examine word है वो कौन से लैटिन वर्ड से डिवाइड हुआ है, derive हुआ है? सो वो derive हुआ है the word from the word examine. ओके, सो देन डोंट गेट कंफ्यूज, आपको पता होना चाहिए कौन सा वर्ड लैटिन वर्ड कहाँ से क्या आया है, ठीक है? तो एग्जामिन जो है वो एग्जामिन से डिराइव हुआ है. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज अ सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल चॉइस एग्जाम, रिटन एग्जाम, ऐसे टाइप एग्जाम, ओरल एग्जाम. तो कह रहे जब हम कॉम्प्रीहेंशन को रीड करते हैं ये किस तरह का एग्जाम्पल है, मतलब उसमें एमसीक्यू, देखो एमसीक्यू तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है? रिटन एग्जाम जब रीडिंग बोल रहा है तो रीडिंग मतलब तो पढ़ना है, तो उसमें लिखने का तो कुछ है ही नहीं. जो कॉम्प्रीहेंशन जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें रिटन तो आएगा नहीं, तो ऑप्शन बी भी गया. ऑप्शन सी ऐसे टाइप, ऐसे टाइप में भी हम लिखते हैं, ठीक है? तो ये है रीडिंग रिलेटेड. तो रीडिंग जो है दैट कैन बी अ एग्जाम्पल ऑफ ओरल एग्जाम. Okay, so the correct answer is D. Written examination includes questions of essay type, short answer type and objective type. कह रहे कि रिटन एग्जामिनेशन जो होता है उसमें ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं. इज इट ट्रू और फॉल्स? तो स्टूडेंट द ऑप्शन इज ए, ट्रू. इट इज ट्रू, क्योंकि रिटन में आप ऐसे टाइप में लिखते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप होता है बट आप लिखते हैं. ऑब्जेक्टिव टाइप जो होते हैं दैट कैन, जिसमें भी आप लिखते ही हो, कुछ ओरल नहीं होता उसमें. सो तीनों जो है वो रिटन एग्जामिनेशन का ही पार्ट है. सो इट इज ट्रू. The variable which intervene between the cause and the effect. Example, anxiety, fatigue, reinforcement, motivation are, options are independent variable, dependent variable, intervening variable, none of this. So here the correct answer is intervening variable. The variable which intervene between the cause and the effect. कौन से cause and effect में? एंजाइटी, फटीग, ये सारी चीजों में जो वेरिएबल यूज होता है दैट इज योर इंटरवेनिंग वेरिएबल. इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग अ सैंपल बिहेवियर इज, कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं सैंपल बिहेवियर को मेजर करने के लिए? सो द करेक्ट आंसर इज टेस्ट. टेस्ट को यूज करके ही हम मेजर करते हैं. The term comprehensive refers to both the scholastic and non-scholastic areas of the pupil growth. True or false? तो जो CCE that is your comprehensive continuous comprehensive education, उसमें जो term comprehensive है उसका मतलब होता है कि both scholastic and non-scholastic area, मतलब कि आप बोल सकते हो academic और non-academic area. मतलब उसमें स्टडी तो आएगी ही, साथ में को करिकुलर एक्टिविटीज भी आएंगी. सो यस इट इज ट्रू. कॉम्प्रिहेंसिव मतलब वाइड, सिर्फ पढ़ाई के बेसिस पे हम इवेल्युएट नहीं करते, हम सारे एरिया को कंसिडर करते हैं. सो इट इज बोथ स्कॉलस्टिक एंड नॉन स्कॉलस्टिक एरिया. ओके. डैश कैन बी इधर फॉर्मल और इनफॉर्मल. असेसमेंट, एग्जामिनेशन, स्कूल, मेजरमेंट. सो द करेक्ट आंसर हियर इज असेसमेंट. असेसमेंट जो है फॉर्मल असेसमेंट भी होता है और इनफॉर्मल असेसमेंट भी होता है. तो असेसमेंट जो है वो दोनों हो सकता है. द असेसमेंट विच मेजर्स व्हाट द स्टूडेंट achieves when given some teaching in an unfamiliar topic or field. तो ऑप्शंस आर ipsative assessment, summative assessment, dynamic assessment, diagnostic assessment. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन में क्या दिया है, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट दिए, ठीक है? The assessment which measures what the student achieve when given some teaching in an unfamiliar topic. Unfamiliar topic मतलब जिसके बारे में इतना पता नहीं है, ठीक है? तो हम इस कौन से असेसमेंट में ये मेजर करते हैं कि जब हम बच्चों को पढ़ाते टाइम उनको कुछ ऐसा टॉपिक देते हैं जिससे वो ज्यादा फेमिलियर नहीं है, जिसके बारे में उनको ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो उस तरह का असेसमेंट को हम क्या बोलते हैं? सो द करेक्ट आंसर हियर स्टूडेंट्स इज डायनामिक असेसमेंट. आप डायनामिक वर्ड से
ये करो डायनामिक मतलब जो बहुत फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो मतलब स्टूडेंट ने वो टॉपिक पढ़ा नहीं है, बट हम उसके नॉलेज को चेक करने के लिए, असेस करने के लिए हम उसे कुछ ऐसा टॉपिक दे रहे हैं जिसके बारे में, जिस फील्ड या टॉपिक के बारे में उसे ज़्यादा पता नहीं है। तो हम देखते हैं उसकी नॉलेज कितनी डायनामिक है। सो दैट वी डू यूजिंग डायनामिक असेसमेंट। वाई असेसमेंट इज इम्पॉर्टेंट? असेसमेंट क्यों ज़रूरी है? टू फाइंड आउट वॉट द स्टूडेंट नो, to find out what the students can do and how well they can do it, to find out how students go about the task of doing their work, all of them. So student, the correct option here is all of them. ये सारी चीज़ों के लिए ही, ये तीनों चीज़ें ही इसमें इंक्लूडेड होती है कि असेसमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है। Dash is a systematic process of documenting and using empirical data on the knowledge, skill, attitudes, and belief of the refined programs and improve student learning. Options are educational assessment or educational evaluation. Measurement, examination, none of this. So student, the correct option here is educational assessment or educational evaluation. ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, इसका डेफिनेशन दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कि इनमें से ये किसका डेफिनेशन है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। इवैल्यूएशन दैट मॉनिटर्स लर्निंग प्रोग्रेस इज, कौन सा वो इवैल्यूएशन जो लर्निंग प्रोग्रेस को मॉनिटर करता है? प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन। सो द करेक्ट इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। पहले भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमने देखा कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है वो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। तो वो क्या करते हैं, रेगुलर जब हम पढ़ा रहे होते हैं उसी टाइम होता है। तो हम लर्निंग प्रोग्रेस को मॉनिटर किस इवैल्यूएशन में करते हैं? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में। ओके। The word test is derived from the Latin word. तो जो टेस्ट है वो कौन से लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है? टेस्टर, टेस्टिंग, टेस्टम, टेस्टम। So the correct option here is testum. जो लैटिन वर्ड है that is testum. So students, so these were the questions from the unit 1. I'll suggest you all to read the complete unit 1 and try to solve this MCQ questions and just check कि आप कितने solve कर पाते हैं. So that's all for now. I'll upload a video on MCQ series for unit 2 very soon. Okay, till then share the channel, share it with your friends, subscribe it so that you'll know whenever I'll upload the video. Bye bye, thank you and take care.